اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ السلام علیکم معزز سامعین، جیسا آج کل الیکشن کی باتیں چل رہی ہیں تو آج ہم بات کریں گے ذرا ہٹ کر کہ ڈیموکریسی اصل میں ہے کیا، جمہوریت اصل میں ہے کیا۔ ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کی چنی ہوئی حکومت، دا گورنمنٹ چوائس بائی دا پیپل، دا سلیکٹڈ بائی دا پیپل، یہ ڈیموکریسی ہے۔ سب سے زیادہ ڈیموکریسی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک جماعت کے اندر ضرورت ہوتی ہے۔ جماعت کوئی بھی بری نہیں ہوتی، جماعتیں سب اچھی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر جو افراد ہوتے ہیں وہ افراد کا کریکٹر برا ہو سکتا ہے، جماعت بری نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی سب سے پرانی جماعت پاکستان مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان بنایا ہے۔ اس کے بعد جو عوام کو، غریب کو شعور دینے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دوسری بڑی جماعت تھی پاکستان کی یہ، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ تیسری بڑی جماعت آپ کہہ سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی یہ تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ باقی چھوٹی چھوٹی بھی جماعتیں ہیں جو صوبائی لیول پر، ضلعی لیول پر موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی کیوں نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر کہ ایک براک حسین اوباما، ایک حبشی اٹھتا ہے اور وہ صدر بن جاتا ہے۔ رونالڈ ریگن جو ایک اداکار تھا اٹھتا ہے، امریکہ کا صدر بن جاتا ہے۔ ابراہم لنکن کے بارے میں سب نے پڑھا ہے، لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ ایسا کیا ہے امریکہ کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر؟ وہاں پر جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے، چاہے ریپبلکن ہے چاہے ڈیموکریٹس ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے پارٹی کی ایفیلیشن، پارٹی کی ممبرشپ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہر پارٹی کی کوشش ہونی چاہیے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کی ممبرشپ ہو یونین کونسل لیول پر، اور اس کے بعد ایسے ہی آگے تحصیل لیول پر، ایسے ہی ڈسٹرکٹ لیول پر، ایسے ہی ڈویژن لیول پر، ایسے ہی پروونس لیول پر، ایسے ہی فیڈرل لیول پر۔ مثال کے طور پر جب آپ لے لیں حلقہ پی پی 107 لے لیں یا پی پی 106 لے لیں، ہونا تو یہ چاہیے ایک الیکٹورل کالج ہو پی پی 107 کے اندر۔ مثال کے طور پر بلدیات کے الیکشن آ گئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے کافی سارے امیدوار، ایک یونین کونسل کوئی بھی نمبر ہے اس کا، 4-5 کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہمیں ٹکٹ دیں مسلم لیگ نون کا، تو یونین کونسل لیول پر ان سب کا اس یونین کونسل میں پارٹی کے اندر ہی آپس میں مقابلہ ہو، اور اس کونسل کے اندر جتنے بھی اس پارٹی کے ممبر ہیں، جتنا بھی ان کا الیکٹورل کالج ہے، وہ لوگ ووٹ دیں اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو۔ جو کینڈیڈیٹ جیت جائے اس کو ٹکٹ اوارڈ کر دیا جائے یونین کونسل لیول کے چیئرمین کے الیکشن کے لیے۔ ایک تو کیا ہو جائے گا، ایک پروسیس لگ گیا، ایک چھلنی لگ گئی، وہ کینڈیڈیٹ آیا جو سب کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، پھر وہ الیکشن لڑے گا، سب اس کی سپورٹ کریں گے، کوئی اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ دوسری بات، یو سی چیئرمین سے اوپر آ جائیں آپ ایم پی اے، جیسے پی پی 107 ہے، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مثال لے لیں آپ، کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک الیکٹورل باڈی ہو پی پی 107 کے اندر۔ مثال کے طور پر 3 کینڈیڈیٹ ہیں، وہ 3 کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، زید، بکر، عمر، ان کا پارٹی کے اندر کمپٹیشن ہو فار دی ٹکٹ آف ایم پی اے شپ، جو اس کے کانسٹیٹوئنسی کے اندر جتنے بھی ممبرشپ ووٹ ہیں، الیکٹورل کالج ہے، وہ لوگ ووٹ دیں، جس سے سب سے زیادہ ووٹ ملے وہ ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ، اسے ٹکٹ اوارڈ کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ مثال کے طور پہ باتیں چل پڑیں علاقے میں، جی رضا نصر اللہ گمن نے اتنے پیسے لے لیے ہیں جی، دوسری طرف میاں فرخ حبیب نے اتنے پیسے لے لیے ہیں جی ٹکٹ دینے کے لیے، یا کسی اور کینڈیڈیٹ نے اتنے پیسے لے لیے ہیں۔ ایسے ہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر لے لیں، پی پی 107 کے اندر ہے۔ اگر پی پی 107 کی ہم مثال لیں، اس سے مثال بنا لیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے 3-4 کینڈیڈیٹ ہیں ٹکٹ کے امیدوار، اظہر جوید، خالد جوید، خالد پرویز گل، سیف اللہ گل اور چودھری کاشف گجر، 4 کینڈیڈیٹ ہیں۔
अगर इनकी एक अपना इलेक्टोरल कॉलेज बना होता, डेमोक्रेसी टू द रूट्स होती, तो क्या होना था, वो उनका एक चारों को खड़े हो जाते अपने पार्टी के अंदर, इनको लोग वोट डालते, जो पार्टी के मेंबर हैं इनको वोट डालते, जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ते वो कैंडिडेट हो जाता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का PP 107 में MPA के लिए। अब क्या हो रहा है, अब आवाज़ें मार्केट में गूंज रही हैं कि फ़लाँ शख्स ने इतने पैसे दे दिए, फ़लाँ शख्स ने इतने पैसे दे दिए, एक शख्स का नाम ज़्यादा आ रहा है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो ये चीज़ें ना होती, तो ये बात मैं कह रहा हूँ ओवरऑल पाकिस्तान की, क्योंकि मैं खड़ा हूँ इस वक्त PP 107 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खड़ा हुआ हूँ। तो ये जमातों को ये सोचना चाहिए, ऐसे ही MNA का मिसाल के तौर पर लाहौर का कोई हल्का हो या कहीं का भी हल्का हो, एक पार्टी के अंदर 3 से 4 कैंडिडेट MNA के उम्मीदवार बन सकते हैं। तो उसका सबसे पहले पार्टी के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। पार्टी के जो उसके मेंबर हैं, पार्टी के जो मेंबर्स हैं जिनका वोटिंग राइट्स जिनके हैं, इलेक्टोरल कॉलेज है, वो वोट दे। अगर 4 कैंडिडेट्स में जिसको भी ज़्यादा वोट डल गए उसे पार्टी टिकट दे दे। जिससे ये जो पैसे की सियासत है, अबहाम की सियासत है, रूमर्स अफवाहें फैलती हैं, झूठ फैलता है, हल्के के अंदर एक अबहाम की कैफियत पैदा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी पार्टीज़ के अंदर चाहिए, ग्रास रूट लेवल के अंदर। एक चेयरमैन भी ग्रास रूट लेवल पर पार्टी के अंदर वोटिंग हो फिर टिकट मिले, एक MPO को भी पार्टी के अंदर वोटिंग हो उसे टिकट मिले, और एक MNA को भी पार्टी के अंदर वोटिंग हो उसे टिकट मिले। और ऐसे ही सूबाई सदूर, ज़िलाई सदूर जो इलेक्शन होते हैं पार्टी के अंदर, तो उसके बाद तहसील के सदूर, और उसके बाद फेडरल लेवल पर जो सदर बनते हैं। जैसे आप देखें कि इमरान खान के मुकाबले में तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप का कोई इलेक्शन लड़ता नहीं, भाई क्यों? इमरान खान की कौन सा बाप की जमात है? ऐसे नवाज शरीफ के मुकाबले में कोई चेयरमैन का इलेक्शन लड़ता नहीं, भाई क्यों? नवाज शरीफ की कौन से जाती जमात है? मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान बनाया, सबसे पुरानी जमात है। ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल भुट्टो के अगेंस्ट कोई इलेक्शन नहीं लड़ता, क्यों? इन्होंने एक अपनी ख़ानदानी, इन लोगों ने विरासत बना ली है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। एक वाहद जमात है, जमात इस्लामी, जिसके अंदर सही ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी है। वहाँ पर आप देखेंगे काजी हुसैन अहमद भी चेयरमैन बन जाते हैं, मियाँ तुफैल भी चेयरमैन बन जाते हैं, और आप देखेंगे उसके बाद सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब भी चेयरमैन बन जाते हैं, और आजकल सिराजुल हक है। यानी मौलाना मदूदी का कोई बेटा शेटा आके नहीं इस जमात का वारिस बना। तो बात यह है दोस्तों, भाइयों, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी लड़कों को, लड़कियों को ये बात करनी चाहिए, सबसे पहले डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर आए। जब पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी आएगी, पार्टी एज ए इंस्टीट्यूशन एक मजबूत इंस्टीट्यूट बनेगी। कोई भी स्टूडेंट उठकर कल को इलेक्शन वो ख्वाब देख सकता है कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकता हूँ, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकता हूँ, ज़िले का मेयर बन सकता हूँ। वरना सूरत हाल तो यही रहेगी कि जुल्फ़िकार अली भट्टो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, फिर बेनज़ीर भट्टो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, फिर आसिफ ज़रदारी 1 दफ़ा सदर, फिर बिलावल भट्टो वज़ीर आज़म। यानी दूसरे लोग देखते रह जाएँ, वकास देखता रह जाए, दाऊद देखता रह जाए, हाफिज़ हबीबुर रहमान देखता रह जाए, मुदस्सर जट देखता रहते, बाबर हबीब देखता रह जाए, और भी बेशुमार लोग हैं, सलमान खान, उमर, ये सब लोग देखते रह जाएँ। ऐसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब बने हैं, 4थी दफ़ा उनके भाई शहबाज शरीफ साहब बन गए हैं। यानी एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाद खकान बासी या दूसरे लोग, शाद खकान बासी को तो खैर उन्होंने बनाया था, मगर जब तक ये उम्मीद पैदा नहीं होगी इस मुल्क के नौजवान के अंदर कि यार मैं भी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, तब तक सही डेमोक्रेसी नहीं आएगी। ये चंद लोग हैं। और ऐसे ही ये तो होगी ना जमात लेवल की बात, पाकिस्तान लेवल पर। ऐसे ही आप ज़िले पे आएँ, अब देखें कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी का जो ख़ानदान है, पहले उनके वालिद साहब थे गवर्नर पंजाब, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब, आज उनके बेटे ज़ैन कुरैशी और सैयद उनकी बेटी मेहर बानो कुरैशी, और मुर्शद बादशाह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, पहले उनके वालिद साहब थे इलेक्शन में, फिर वो आए, अब उनके बेटे 3-4 वो भी इलेक्शन में हैं। ऐसे आप देख लें मखदूम अहमद महमूद चले जाएँ रहीम यार खान में, और ऐसे आप देख लें जहांगीर तरीन उसका बेटा, ऐसे KPK में चले जाएँ परवेज़ खट्टक उनके बेटे, आफ्ताब शेरपाव का पूरी नस्ल पूरा ख़ानदान चल रहा है, तरकई ख़ानदान पूरा चल रहा है। और ऐसे आप चले जाएँ उधर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ चले जाएँ, गुजरात के चौधरीयों के पास आ जाएँ कि जिन्हें कि चौधरी ज़हूर लाई, चौधरी शुजात सैन, चौधरी परवेज़ लाई, मोनस लाई, वो जात साला के चल रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर आप आ जाएँ, चौधरी शेर अली,
चौधरी शेर अली का बेटा चौधरी आबर शेर अली, उसके बाद अमर शेर अली आ जाएगा, उसके बाद आबर शेर अली के बेटे आ जाएंगे। क्या पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा, दूसरा देख लें आप, बेशुमार और भी आपको मैं बता सकता हूँ, ये तो मसाले दे के मैंने बातें की हैं। तो ये क्या कोई और बंदा नहीं खड़ा हो सकता? क्या अब्दुल नबी कंबो नहीं एमएनए के लिए खड़ा हो सकता? क्या साजिद जट नहीं एमएनए के लिए खड़ा हो सकता? क्या परवेज जट नहीं एमएनए के लिए खड़ा हो सकता? कोई भी और बंदा, बेशुमार लोग होंगे। तो ये ये हमारी वजह से है। हम लोग नारे लगाते हैं, हम लोग नारे लेते हैं जिंदा है बीबी, जिंदा है भट्टो, हम लोग नारे लगाते हैं इमरान तेरे जानसार बेशुमार, हम भाग भाग कर गाड़ियों पर चढ़ते हैं और हमने उनको पक्की पक्की चौधराहतें दे दी हैं। क्या हमारी माओं की कोख से एक लीडर पैदा नहीं हो सकता? जब तक हम नहीं बदलेंगे, वकास नहीं बदलेगा, आप सब लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक पाकिस्तान नहीं बदल सकता। ये सोच बदले, मुरूसी सियासत को ख़त्म करें, अपने महल्ले से, अपने ज़िले से, अपने डिवीज़न से, अपने सूबे से, अपने मुल्क से, ताकि पढ़े लिखे लोग आगे आएँ जो विजन रखते हैं, जो पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। MQM एक वह जमात थी जिसके अंदर मुरूसी सियासत नहीं थी, जो हर दफ़ा MNA MP बदल जाते, मगर वो अल्ताफ़ हुसैन की और राह के हाथों में आकर इंतहा पसंदी का शिकार हो गए। मगर वो जमात मिडिल क्लास लोगों की अच्छी जमात थी। तो यही बात करनी दोस्तों, मेरा किसी जमात के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ यही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान बदलेंगे आप लोग। जब तक मैं ही हर गाड़ी पर चढ़ के नारे मारता रहूँगा कि चौधरी फलाने, चौधरी सैफुल्लाह गिल जिंदाबाद, या चौधरी आबर शेर अली जिंदाबाद, या चौधरी फ़रख हबीब जिंदाबाद, या चौधरी इमरान खान जिंदाबाद, या चौधरी फैज़ुल्लाह कमोका जिंदाबाद, तो फैज़ुल्लाह कमोका को या आबर शेर अली को क्या ज़रूरत है मुझे टिकट देने की? आप देखें कि मियाँ ताहिर जमील अच्छा कैंडिडेट है, नया ख़ानदान है, ऐसे मुस्लिम लीग नून की एक अच्छा मियाँ ताहिर जमील को मुतारफ़ कराया, अच्छी बात है, अच्छा कैंडिडेट आगे हैं। ऐसे PTI में देख लें लतीफ़ नज़र गुज्जर है, और बेशुमार दुरमराज सईद अली मोहम्मद खान है, और ऐसे ही आपके PP 107 में अज़हर जवेद गुज्जर, जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जिसका ना बाप सियासत में था ना दादा सियासत में था, ये एक नया नौजवान आया है। अगर अज़हर जवेद गुज्जर को आप लोग इस इलाके से इस दफ़ा मुंतखब करवा देते हैं तो ये उम्मीद की किरण पैदा हो जाएगी डिस्कॉर्ड के नौजवानों के लिए भी, जहांगीर के नौजवानों के लिए भी, दसूबे के नौजवानों के लिए भी, मियानी के नौजवानों के लिए भी, बलोच वाले के नौजवानों के लिए भी, हरी सिंह के नौजवानों के लिए भी, और 232 रेबे बावे वाले के नौजवानों के लिए भी, जितने भी इसके चकूक हैं, हर नौजवान ये सोच सकता है यार अगर अज़हर गुज्जर MPA बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो ऐसे बदलेगा निज़ाम। ताहिर जमील जैसे लोग जब तक आगे आएंगे, अज़हर जवेद गुज्जर जैसे लोग आगे आएंगे, और जैसे मैंने मिसाल दी है और भी काफ़ी नौजवान लोग हैं। शुक्रिया। या हय्यू या क़य्यूम। अस्सलाम वालेकुम।